Hello, children. How are you all? Hope you will be fine. Children, today I'm going to explain poem 2, Palanquin Bearers. Okay, the name of the poem is Palanquin Bearers. Children, as I've already recited the poem in the last video, you can see, and today I'm going to explain it. Okay, so children, the this poem has been written by a Bengali poetess. Okay, the name of the poetess is Sarojini Naidu. It means this poem has been written by Sarojini Naidu, and she was also called as the Nightingale of India. Okay, उन्हें एक टाइटल दिया गया था, that was Nightingale of India, because she used to sing song and her voice was so melodious, so sweet, and her voice was compared with the nightingale. Nightingale is a bird. जो नाइटिंगल होता है एक बर्ड होती है. ओके, एक चिड़िया है जिसकी जो आवाज़ होती है बहुत स्वीट होती है. So here the voice of that poetess, it means Sarojini Naidu, sorry, the voice of the Sarojini Naidu has been compared with the bird, that is nightingale. Okay, that's why she is also called as Nightingale of India. Fine. And this lady has played very important role in India's fight for independence. When India was fighting for independence, then she played very important role. She was the most important figure in that fight. Got it? She is also called the freedom. You may also call her freedom fighter also. She is one of the freedom fighters. So children, this poem has been written by Sarojini Naidu, and she has written many poems for children. Okay, and this poem is one of them, Palanquin Bearers. So let's start. At first you should know what is palanquin. So children, palanquin is a box like structure. Means it will be box like structure, and it will be for one passenger. Means what? ये जो हमारा palanquin होता है ये एक box like structure होता है. In Hindi you can say डोली और पालकी. ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसमें कितने लोग बैठ सकते हैं? ओनली वन पैसेंजर, मीन्स सिर्फ एक लोग ही इसमें बैठ सकते हैं. गॉट इट? बिकॉज इसमें तो कोई व्हील लगे नहीं होते हैं, है ना. चिल्ड्रन, हैव यू एवर सीन पैलंकिन? You might have seen, or if you haven't seen, then you can see in the picture also, in the movies also, and here also a picture is given. You can easily see in the picture. This is your palanquin. Okay, in which a bride is sitting. As you can see here, bride is there, है ना. यहाँ एक दुल्हन बैठी है एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर में. दैट इज़ योर पैलंकिन. गॉट इट? एंड सी चिल्ड्रन, ये जो पैलंकिन है इसमें आप देख सकते हो छोटा सा स्पेस है, मतलब सिर्फ एक लोग बैठ सकते हैं, है ना. बिकॉज इसमें व्हील तो लगे नहीं है कि ये आराम से चल सकता है. अगर ज़्यादा लोग बैठ जाएंगे तो फिर इन्हें तो कैरी करना मुश्किल हो जाएगा. क्यों? क्योंकि इसे लोग कैरी करके ले जाते हैं अपने कंधे पर. एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, देयर आर टू मैन एंड दे आर कैरिंग दिस पैलंकिन. एज यू कैन सी हियर, सी दिस टू मैन आर देयर, दे आर कॉल्ड पैलंकिन bearers. The word is given in the name of the poem, Palanquin Bearers. It means this poem is about these two men. Okay, these bearers, Palanquin Bearers. ये पोएम हमारा इनके बारे में, पैलंकिन बियरर्स के बारे में. एंड हु आर दे? ये बियरर्स होते कौन है? पैलंकिन बियरर्स कौन होते हैं? तो वो लोग, दोज पर्सन हु आर कैरिंग पैलंकिन. ओके, एंड दे कैन बी इन इवन नंबर. दे विल बी इन इवन नंबर सच एज मल्टीपल ऑफ 2. मीन्स व्हाट? 2, 4, 6, है ना. दे आर द मल्टीपल्स ऑफ 2. As you must have studied in the maths class, what is even number? Then that is a multiple of 2. जो मल्टीपल ऑफ 2 होता है उसे हम इवन नंबर कहते हैं. और हमारे जो पैलंकिन बेयरर्स होते हैं वो भी हमारे इवन नंबर में होते हैं. ओके, मोस्टली दे विल बी इन आइदर 2 or 4, नॉट मोर देन दैट. बिकॉज द पोल विद दे आर कैरिंग. देखो आप यहाँ जो दो मेन हैं, जो बेयरर्स हैं, वो किसी चीज़ को पकड़े. एक पोल है निकला पैलंकिन से, ये लोग उसे पकड़े हैं. तो ये हमारा, अगर 2 पोल है देन देयर विल बी ओनली 2 बेयरर्स. इफ़ देयर बी 4 पोल्स देन देयर विल बी 4 बेयरर्स. गॉट इट? अगर 2 पोल है तो 2 लोगों की ज़रूरत है, और 4 रहेंगे तो 4 लोगों की ज़रूरत है.
And one more thing is that children, if there will be two men, two bearers, then one will be at the front side of the palanquin and other will be at the back side. And if there will be four bearers, then there will be two at the front and two at the back. Got it? Now see children, these two bearers are singing a song, okay, while carrying this bride, and this bride is going to a new house. Palanquin is used for what? For this is used for bride. Bride means दुल्हन. ये जो palanquin है वो दुल्हन है, इसमें क्या करती है, बैठकर अपने न्यू हाउस जाती है. ओके, एंड न्यू हाउस मीन्स वो अपने हस्बैंड के घर जाती है जब शादी होती है तो. गॉट इट? it was used in old custom, not in not in this days, because पहले जो थे हमारे पास उतने गाड़ी नहीं होते थे, 4 व्हीलर्स नहीं होते थे जिस पर जैसे कि आज की जो ब्राइड होती है वो क्या होती है, वो जाती है किस चीज़ से, गाड़ी से जाती है ना, वो 4 व्हीलर से जाती है, कार से जाती है, किसी चीज़ मतलब कि वो जाती है, व्हीकल यूज़ करती है. बट इन द अर्ली डेज उस समय क्या था, हमारे पास गाड़ियाँ नहीं होती थी. दैट्स वाई जो हमारी दुल्हन होती थी वो किससे जाती थी, वो पैलंकिन से जाती थी. गॉट इट? और ये जो बेयरर्स है ये एक सॉन्ग सिंग कर रहे हैं, मतलब ये गाना गा रहे हैं एंड ये कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं. ओके, ये अपनी फीलिंग्स इस पर एक्सप्रेस कर रहे हैं और आप उसे इस पोएम के थ्रू जान सकते हो ये इनकी क्या फीलिंग्स है. ओके, वी विल स्टार्ट इट नाउ. सी चिल्ड्रन, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस पोएम. Come to the first stanza. Lightly, oh lightly, we bear her along. She sways like a flower in the wind of her song. She skims like a bird on the foam of a stream. She floats like a laugh from the lips of a dream. Gaily, oh gaily, we glide and we sing. We bear her along like a pearl on a string. See children, these two bearers are singing a song and they are saying that we are carrying this bride very lightly. It means what? We are carrying this palanquin very light. We are moving very lightly by carrying this palanquin so that the bride can be in comfort zone. मतलब it means she can be comfortable. वो लोग इतना स्लोली आराम से स्मूथली वॉक कर रहे हैं ताकि वो ब्राइड को कुछ दिक्कत ना हो. इट मीन्स व्हाट? ताकि वो जो ब्राइड इसमें बैठी है उससे कुछ तकलीफ़ ना हो. व्हाट इट? सो दैट शी विल बी कंफर्टेबल इन दैट पैलंकिन. दैट्स वाई दे आर मूविंग सो स्मूथली. ओके, एंड दे आर सेइंग व्हाट? लाइटली, ओ लाइटली. इट मीन्स व्हाट? दे आर कैरिंग हर वेरी लाइटली. मीन्स व्हाट? वो बहुत उसे आराम से उसे ले जा रहे. दे आर मूविंग वेरी स्मूथली. गॉट इट? She sways like a flower in the wind of our song. She skims like a bird on the foam of a stream. She floats like a laugh from the lips of a dream. And she is swaying. Swaying means what? She is moving like flower. आपने फ्लावर को देखा है? फ्लावर को देखा होगा कि वो कैसे मूव करते हैं अगर हवा चलती है. When there be air, then they used to move from into and fro motion, like from here to here. Then in the same way here the bride is also moving. Got it? अगर वो पैलंकिन में बैठी है तो पैलंकिन अगर चल रहा है तो वो तो हिल रहा होगा ना, और वो हिल रहा है तो वो ब्राइड भी हिल रही है, और वो हिल रही है तो कैसे मोशन में हो रहे हैं उसके, मतलब कि वो जो उसका जो मूवमेंट हो रहा है तो वो किससे कंपेयर किया गया? दैट इज़ विथ अ फ्लावर. गॉट इट? हियर द वर्ड इज़ यूज्ड लाइक अ फ्लावर. इट मीन्स व्हाट? द ब्राइड हैज़ बीन कंपेयर्ड विथ दैट फ्लावर. There are one more thing I would like to say you children, that there are two meanings of like. Got it? First one is like means what? पसंद करना. Okay, which it means fond of it, मतलब उसके शौकीन होना. That place you will use like, the word like. And one more meaning is there, to show similarity. If you are showing some similarity, then there you can also use like. And in this poem here the meaning of the like is the for showing similarity here, because bride has been compared, okay, with flower. यहाँ फ्लावर से कंपेयर किया गया से. इन द नेक्स्ट टाइम शी हैज़ बिन कंपेयर्ड विथ बर्ड. लाइक यहाँ वर्ड यूज़ करके इसे कंपेयर किया जा रहा है. गॉट इट? शी स्किम्स लाइक अ बर्ड ऑन द फोम ऑफ अ स्ट्रीम. शी फ्लोट्स लाइक अ लाफ फ्रॉम द लिप्स ऑफ अ ड्रीम. मीन्स ये जो
Now children, in the third line, the bride has been compared with the bird. Okay, she has been compared with a bird, that she's like a little bird. It means what? जिस तरह से बर्ड, अगर उसे कुछ भी लेना होता है, ज़मीन पर से उठाना होता है या कुछ भी लेना होता है, देन विद व्हाट शी डज, देन शी यूज टू कम ऑन द लैंड एंड देन शी क्विकली फ्लाइज अवे, मतलब कि वो जैसे तुरंत आती है तुरंत उड़ जाती है। तो वैसे ही जो हमारी ब्राइट है, शी इज़ ऑल्सो लाइक हर, मतलब लाइक अ बर्ड। इट मीन्स वॉट? अगर उसे पालकी से कुछ भी निकलना होता है, सपोज इफ़ शी इज़ ऑन द वे एंड शी हैज़ टू कम आउट फ्रॉम द palanquin फॉर सम वर्क या फॉर सम रीज़न, देन व्हाट शी डज, जैसे वो आती है निकलती है बट फटाक से फिर अंदर बैठ जाती है। मीन्स शी डजेंट स्टे आउट ऑफ द palanquin फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, कुछ ज़्यादा देर के लिए वो बाहर नहीं रुकती, मतलब कि जैसे जो उसे कुछ काम था जो भी था वो फटाक से किया उसने एंड देन फटाक से वो बैठ जाती है। दैट्स वाई शी हैज़ कंपेयर्ड विद अ बर्ड, लाइक शी इज़ लाइक अ बर्ड। मीन्स व्हाट? वो उस बर्ड की तरह, जैसे कि वो जिस तरह से वो बर्ड अपने काम के लिए नीचे वो लैंड पर आती है एंड देन तुरंत उड़ जाती है। ओके, now see children, in the fourth line she has been compared with a smile or a laugh. You can say, children, if you are having some sweet dream, suppose if there will be if you are dreaming of some good things, then you must be observing yourself or some other person that he or she is smiling. There will be a smile on her or his face. अगर कुछ अच्छा ड्रीम, किसी के ड्रीम में कुछ अच्छा चीज़ दिखता है, आई मीन वो ड्रीम करते हैं, कुछ अच्छा ड्रीम होता है, तो क्या होता है? ऑटोमेटिकली देयर विल बी अ स्माइल ऑन देयर फेस, है ना, ऑन दैट पर्सनस लिप्स। तो उस पर्सन की लिप्स पे क्या एक स्माइल सी होती है, एक प्यारी सी स्माइल होती है। तो यहाँ जो हमारी ब्राइट है वो भी उस स्माइल से कंपेयर की गई है। गॉट इट? इट मीन्स दिस टू bearers are singing a poem and they are describing about the bride. गॉट इट? ये जो बेयरर्स है वो ब्राइड के बारे में क्या कर रहे हैं? डिस्क्राइब कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि वो किस तरह से, वो कितनी नाजुक सी है, कितनी प्यारी सी है, एंड वो किस तरह से, मतलब कि हम उसे जब ले जा रहे हैं तो किस तरह से रह रही है उस पैलेंकिन में, फटाक से निकलना, फटाक से तुरंत बैठ जाना। शी इज़ नॉट टेकिंग सो मच टाइम इन आउटसाइड ऑफ द पैलेंकिन। तो ये सारा जो है, ये सारी जो भी बातें वो कौन बता रहा है? बेयरर्स बता रहा है। ओके, पैलेंकिन बेयरर्स जो है वो हमें बता रहे हैं through this poem. Okay, they are sharing their feelings with through this poem. And what one more thing is that they are saying that they are enjoying their journey while carrying this bride. ये जो palanquin bearers है वो क्या बोल रहे हैं कि हम लोग बहुत खुश हैं, हम लोग बहुत खुशी खुशी दुल्हन को ले जा रहे हैं और हम लोग बहुत एंजॉय करते हुए ले जा रहे हैं कि जब वो इस दुल्हन को ले जा रहे हैं अपने उसके नए घर। तो gaily, oh gaily, we glide and we sing, we bear her along like a pearl on a string. See children, in these two lines, bearers are saying that we are so happy, and we are when we are carrying this bride, then we are so happy, and we are moving in a very jolly mood. Okay, while we are carrying this bride, and they were singing also. When they were carrying this bride, then they were singing also, and they are showing their happiness through the song. Got it? And what they are saying that we are we are very happy and we are carrying this bride very smoothly. Okay, gaily means cheerfully, means they are very happy and they are carrying this bride very smoothly, so that the bride cannot get any harm, and we bear her along like a pearl on a string. Means what? The word is given string means thread. Okay, pearl means moti. एज वी चिल्ड्रन, जैसे कि हम किसी स्ट्रिंग में मोती को पिरोते हैं, हाँ, बड़ा ध्यान से पिरोते हैं ना, ताकि वो कहीं मेरे हाथ से फिसल कर नीचे ना गिर जाए। मीन्स वो स्ट्रिंग में ही जाना चाहिए, बड़ा हम लोग ऐसे संभाल कर पकड़ते हैं। इन द सेम वे दे आर सेइंग दैट वी आर होल्डिंग दिस पैलेंकिन इन विच ब्राइड इज सिटिंग, वी आर होल्डिंग दिस पैलेंकिन वेरी वी आर होल्डिंग दिस पैलेंकिन वेरी gently, means and we are so what you can say that we are so careful that our bride cannot get any harm. और हम उसे एक मतलब मोतियों की तरह, मतलब उसे बड़ा संभाल कर लेकर चल रहे हैं, जैसे मानो वो कोई मोती हो। गॉट इट? नाउ अगेन द ब्राइड इज कंपेयर्ड विथ अ
pearl. As you can see, children, she has been compared with so many things like flower, bird, smile or laugh, you can say, and then pearl. Okay, now moving further. Now coming to the next page. Softly, oh softly, we bear her along. She hangs like a star in the dew of our song. So children, in these lines, this bride has been compared with the star. As you have seen, children, that whenever there will be a bride, then you must have seen that there will be a very charm on her face, and she will be blushing, and there will be so cuteness on her face, and she will be shining, and her shining has been compared with the star, the shining of the star. Here, the shining of the brightness has been compared with the shining of a स्टार. जो स्टार की जो चमक होती है उससे कंपेयर किया गया है ब्राइट को. गॉट इट. एंड दिस bearers are sharing this feelings, this things with the help of their song, and they are singing a song, and in this way they have shared their feelings. ये जो बता रहे हैं दुल्हन के बारे में, जो डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं? सॉन्ग के थ्रू कर रहे हैं, है ना. तो इन्होंने अपने सॉन्ग में ये बताया है कि जो हमारी दुल्हन है, जो हमारे पालकी में बैठी है, वो एकदम शाइन कर रही है जैसे कि मानो कोई स्टार हो. गॉट इट. नाउ कम टू द नेक्स्ट लाइन. She springs like a beam on the brow of the tide. She falls like a tear from the eyes of a bride. And again she has been compared with a beam. Beam means what? Ray of ray. ठीक है, जो किरण होती है, लाइट की जो रे आती है. She has been compared with that. जैसे किसी लहरों पर उसके टॉप पर देखा होगा आपने कि वो लाइट पड़ती है, तो कैसे जो लाइट आती है वो जंप करती हुई आती है मानो. तो उस तरह से हमारी जो दुल्हन है वो उसी लाइट की तरह है ना. She is compared with the beam. एंड वो शी हैज़ बिन कंपेयर्ड विद द टीयर. जैसे कि हमारे आंसुओं से जो टीयर निकलते हैं, तो वो उस आंसुओं की तरह है. शी फॉल्स लाइक ए टीयर फ्रॉम द आइज ऑफ ए ब्राइड. वो उन आंसुओं की तरह है जो क्या दुल्हन की आंखों से निकलती है. गॉट इट. लाइटली, ओ लाइटली वी ग्लाइड एंड वी सिंग, वी bear her along like a pearl on a string. Again, these two lines are repeated here, and these bearers are saying that again they are saying that कि हम लोगों ने उसे बड़ा ही सावधानी से, बड़ा ही अच्छे से हमने उसे पकड़ा है, संभल कर पकड़ा है इस पैलंकिन को, ताकि हमारी दुल्हन भी मतलब किसी भी कुछ थोड़ी सी भी कुछ प्रॉब्लम ना हो. एंड वी आर मूविंग सो स्मूथली so that she can be safe, and we are moving and we are singing a song, and we are carrying her with us like a pearl on a string. मतलब we are treating her like a pearl. वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों ने इसे कैसे ट्रीट कर रखा है, जैसे कोई मोती हो, थ्रेड में पिरोई हुई कोई मोती हो, उस तरह से हमने उसे संभाल कर रखा है, और हम उसे संभाल कर उसे नए घर ले जा रहे हैं. ओके. एंड दिस पोएम इज़ लाइक अ सॉन्ग, एंड दैट हैज़ बिन sung by these two bearers. Okay, these two palanquin bearers. And as I've already told you that this poem has been written by a poetess, Sarojini Naidu. So children, poetess means what? Poet means if there will be a male, then he will be called poet, and if there will be female, then she will be called poetess. Got it? And Sarojini Naidu is a female, that's why she will be called as poetess. Got it? And this poem has been written by Sarojini Naidu, and as I already told you that she is known as the Nightingale of India, है ना. And she was a Bengali poet. Means what? Because children, if you are living in Bihar, अगर आप बिहार में रह रहे हो तो आपको क्या कहा जाएगा? बिहारी, है ना. इंडिया के रहने वाले तो इंडियन. तो in the same way she used to live in Bengal, that's why she is called as Bengali. Okay, वो बंगाल में रहती थी, इसलिए उनको बंगाली कहा गया है. एंड शी हैज़ रिटन मेनी चिल्ड्रंस पोएम्स. आई हैव टोल्ड यू दैट उन्होंने बहुत सारे पोएम्स लिखे हैं बच्चों के लिए, और शी वॉज एन इम्पोर्टेंट फिगर इन इंडियाज़ फाइट फॉर इंडिपेंडेंस. एंड वो जो थी बहुत ही क्या थी, बहुत ही फेमस और बहुत ही इम्पोर्टेंट लेडी थी, जिसने इंडिपेंडेंस के टाइम में अपना योगदान दिया, मीन्स उन्होंने हेल्प किया था. दैट्स वाई शी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. ओके. And this was our poem. I hope you would have understood this poem. Now children, I would like to say something about this poem. See children, again I'm going to tell you that the word about like. Okay, जैसे मैंने बताया आपको like के दो मीनिंग होते हैं, है ना.
और यहाँ जो लाइक की मीनिंग है वो क्या है, मीन्स समथिंग हैज़, यहाँ टू शो सिमिलरिटी, मतलब समथिंग हैज़ बिन कंपेयर्ड फॉर शोइंग सिमिलरिटी। यहाँ किसी चीज़ को कंपेयर किया जा रहा है सिमिलरिटी दिखाने को, और किसको किया जा रहा है, ब्राइट को किया जा रहा है, ठीक है। और किससे सिमिलरिटी दिखाई जा रही है, चाहे तो फ्लावर से, बर्ड से, ओके, इससे बहुत सारी चीज़ों से उसको कंपेयर किया गया है और क्या सिमिलर बताया जा रहा है, गॉट इट। ये जो वर्ड यूज़ किया गया ना, लाइक अ फ्लावर, लाइक अ बर्ड, तो ये हमारा एक फिगर ऑफ स्पीच होता है पोएम में, यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस, एंड दैट इज़ अ सिमिली। ये जो लाइक अ फ्लावर, लाइक अ बर्ड है, तो यहाँ पोइटेस ने क्या यूज़ किया, सिमिली यूज़ किया है, ठीक है। इफ़ देयर बी लाइक वर्ड, anything will be compared, then that will be your simile, figure of speech, okay. In higher classes we will study in brief. So for junior classes you have to know that here is simile is used. अगर like है तो simile है, means what, अगर compare किया गया like word use करके compare किया गया, then that will be simile, got it. Now come to the exercises. See children, comprehension. Question number A. Choose the correct options to answer the following questions. See children, options are given and you have to tick it out. First one I will do it. Who are the palanquin bearers carrying in the palanquin? जो palanquin bearers थे उन्होंने किससे कैरी किया था palanquin में? ब्राइड ग्रूम को, ग्रूम मीन्स दूल्हा, क्या दूल्हे को किया था? देन नो. बी ब्राइड को किया था, द ब्राइड, देन यस. सी द ग्रैंडफादर, क्या दादा या नाना को किया था? देन नो. द मदर, मदर को किया था? नो. देन योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, द ब्राइड, ओके. In the same way you will do all these questions. Question number 2, what are the palanquin bearers doing along with carrying the palanquin? जब वो palanquin bearers को जो palanquin bearers है वो जब कैरी कर रहे थे palanquin को, तो वो कैरी करने के साथ साथ और क्या कर रहे थे? तो वो गाना गा रहे थे ना, तो आप ऑप्शन में ढूंढो एंड देन टिक इट. थर्ड में देखो आप, हाउ आर द palanquin bearers कैरिंग द palanquin? जो palanquin bearers है वो palanquin पालकी को कैसे कैरी कर रहे थे? क्या बहुत तेज़ी से उससे कैरी कर रहे थे, जब बहुत ही उससे रफली कैरी किया था उन्होंने? तो नहीं, उन्होंने बहुत सॉफ्टली किया था ना, बड़ा आराम से किया था. तो आप ऑप्शन में ढूंढोगे आप, गॉट इट. क्वेश्चन नंबर 4, हु इज़ द पोएट कंपेयरिंग द ब्राइड टू इन द फर्स्ट 3 लाइन्स ऑफ द पोएम? पोएट ने फर्स्ट 3 लाइन्स में जो ब्राइड को किसी से कंपेयर किया है? तो फर्स्ट 3 लाइन्स में आप आ जाओ, देखो इन द पोएम, सी चिल्ड्रन हियर, इन द फर्स्ट 3, 1 2 3, इन तीनों में देखो क्या क्या कंपेयर किया गया है. लाइक अ फ्लावर, लाइक अ बर्ड, यही है ना, मीन्स व्हाट, फ्लावर और बर्ड से किया गया है. और लाइक अ लाफ, ये तो 4th लाइन हो जा रहा है, बट यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फर्स्ट 3 लाइन्स, ओके. बस शुरुआत के 3 लाइन्स में देखो आप, तो यहाँ क्या गया है, फ्लावर से और बर्ड से. देन सी हियर, योर आंसर विल बी, किससे क्या गया, बर्ड एंड फ्लावर है ऑप्शन में. देन यू विल सर्च इट एंड देन यू विल टिक इट. देखो आप ऑप्शन में ढूंढो. क्वेश्चन नंबर 5, विच पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स हैज़ बीन यूज्ड इन द पोएम? कौन सा राइमिंग वर्ड्स में मैच कर रहा है? देखो आप, बियर एंड टीयर राइमिंग वर्ड्स तो है, बट ये पोएम में है? देन नो, ये पोएम में नहीं था. बी में देखो आप, विंड एंड ग्रिंड राइमिंग वर्ड्स तो है, बट ये पोएम में नहीं यूज़ किया गया ये वर्ड्स, बट तो ये भी नहीं होगा. सी में देखो आप, स्ट्रीम एंड ड्रीम, स्ट्रीम एंड ड्रीम राइमिंग वर्ड्स है और इसे पोएम में भी यूज़ किया गया है. मैं आपको दिखाती हूँ, देखो आप यहाँ, कम टू द 3rd एंड 4th लाइन, दिख रहा है आपको? सी हियर, स्ट्रीम एंड ड्रीम, है ना. देन दिस 2 आर राइमिंग वर्ड्स विच हैज़ बीन यूज्ड इन पोएम, सो इट विल बी योर आंसर, गॉट इट. तो आप इसे कर लोगे आप, that will be your answer, stream and dream, C option, okay. Now see children, think and answer the following questions. First question, what do you think are the palanquin bearers feeling in the poem? जो palanquin bearers है वो कैसा फील कर रहे थे पोएम में? क्या वो गुस्से में थे या खुश थे? वर दे हैप्पी और सैड? खुश थे या ना खुश थे, सैड थे? तो नहीं, खुश थे ना वो, तो आपको यहाँ लिखना है, ओके. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2, इज़ द ब्राइड हैप्पी और सैड इन द पोएम? और जो ब्राइड है वो खुश है या दुखी है? शी मस्ट बी हैप्पी बिकॉज शी इज़ गोइंग टू हर हस्बैंड्स हाउस, टू हर न्यू हाउस.
and she's sad also because she has left her parents, that's why. Okay, so you have to judge here. Okay, now that's all. I hope you would have understood it. So that's all for today, and thank you children, thank you very much. Bye bye.